and it is not possible to translate each and every sentence. So it is very important to sound like a native speaker. If you want to sound like them, then you should learn these common phrases. So hello everyone, how are you all? Hope you all are great. Welcome back to another session of English speaking skills. My name is Rashmi Singh and I am with you in this English speaking journey. Friends, so first of all, please subscribe my channel so that you will not miss any update or any video which I will post on my channel. Also like the video and share with your friends. In this video, we will learn use of common phrases. You know, friends, you cannot translate each and every sentence of any language, Hindi or any language, in English because there are some ways which are used by native speakers in their own terms. Please learn these common phrases so that you can improve your English in a very short time because these sentences are ready-made sentences and we require these sentences and it saves our time, and it is not possible to translate each and every sentence. So it is very important to sound like a native speaker. If you want to sound like them, then you should learn these common phrases. So today we will learn 50 small daily use sentences, and in this video we will learn the 25 sentences, and these are the common phrases which you can learn directly. Don't waste your time in translation. Just learn them and see the improvement in your English speaking skill, and don't need to translate the sentence because अगर आप उसे translate करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा. चलिए करके देखते हैं. The first one is, give me a little time, I'm just setting it. Yeah. So the first one, बात तो फिर वही है ना. अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं बात तो फिर वही है ना, कैसे आप इसको ट्रांसलेट करेंगे? सोचिए जरा. 5 सेकेंड में आपको देती हूँ. 1 2 3 4 5. It's again the same talk. It's again the same discussion. What will you say? No, there is a ready-made sentence. You have to say it like this. It's again the same point, right? Repeat after me. It's again the same point, right? It's again the same point, right? The next one is, ये लड़का सुधरने का नाम ही नहीं लेता. कैसे इसे ट्रांसलेट करेंगे? You have 5 seconds. ये लड़का सुधरने का नाम ही नहीं लेता. This boy doesn't have any improvement. काम चल जाएगा आपका. But how to say it like a native speaker? Just memorize the sentence. बहुत ही प्यारा sentence है, देखिए. This boy just won't budge. Repeat after me. This boy just won't budge. बस इसे लर्न कर लो, याद कर लो. सुधरने का नाम नहीं लेता, इम्प्रूवमेंट और ये सब करने की जरूरत नहीं है, रोज बोलो. Just use it in your daily sentence. Make it beautiful. This boy just won't budge. The next one is, तुम हर बात पर बहस करते हो. Try it. तुम हर बात पर बहस करते हो. You argue on everything. You argue on everything. Repeat after me. You argue on everything. बहस करते हो, डिस्कशन करते हो. जब ये बातें होती हैं, जब एक दूसरे से थोड़ी नोक झोंक वाली बात होती है, तो बोलते हैं आर्ग्यू. हमेशा याद रखो, तुम हर बात पर बहस करते हो. You argue on everything. Now the next one is, मेरी कपड़े तह करने में मदद करो. How to say this in English? मेरे कपड़े तह करने में मदद करो. Please help me in making the clothes. How to say? You have 5 seconds to think. This is the sentence. Help me to fold the clothes. Help me to fold the clothes. Repeat after me. Help me. मेरी मदद करो. Help me to fold the clothes. The next one is, कपड़ों को अलमारी में रख दो. कपड़ों को अलमारी में रख दो. Think about it. The sentence is, keep the clothes in the closet. अलमीरा भी कह सकते हैं, तो closet ज्यादा बोलते हैं इसलिए. Just learn them. Because if you practice and you memorize these sentences and you are using it every day, then you will be just habitual.
You will become habitual of these sentences. Keep the clothes in the closet. Keep the clothes in the closet. Now, which one is the next? इन किताबों को इकट्ठा करो. इन किताबों को इकट्ठा करो. इसको बनाने की कोशिश करो. Maybe you can make it correct. Collect the books. Collect these books भी कर सकते हैं. Collect the books. But mostly we say it. Collect the books. The next one. इन्हें इनकी जगह पर रख दो. Now, अगर कोई सामान है आप बोल रहे हैं इन्हें इनकी जगह पर रख दो. कहीं से ले आए थे हम, चाहते हैं वापस से किताबों को उनकी जगह पे रख दो. How will you say this? Keep it at the place. Keep it at the right place. कुछ देखते हैं. Put them away. Put them at the place. जहां से आया था, at that place. Put them away. The next one is पर्दा लगा दो. अब इसको कैसे कहेंगे? पर्दा लगा दो. Make the curtain. How to say it? You have to learn this. Draw the curtain. You always use it in your home with your brother, with your sister, whoever in the family. You can use these sentences. You can practice it for 5 or 7 days. You will learn it. You will memorize it. You don't don't have to translate each and every sentence because you know how to say these sentences. Parda laga do. Draw the curtain. Repeat after me. Draw the curtain. Guitar bajao. Translate it. I know you can do this. Play the guitar. Play the guitar. आप मुझे कमेंट में बताइएगा कितने लोगों ने इसे खुद से कर लिया था. Play the guitar. And now, नल खुला मत छोड़ो. हम नॉर्मली घर में यही सारे सेंटेंसेस यूज करते हैं. Then we become blank. How to say this? नल खुला मत छोड़ो. Don't open the tap. Don't keep open the tap. How to say this? देखते हैं. Don't leave the tap running. Wow. Don't leave the tap running. जैसे हम कहते हैं नल खुला मत छोड़ो, ये हमारा तरीका बोलने का. वो कहते हैं don't leave the tap running. पानी बह रहा है ना. Tap running मतलब पानी गिर रहा है. Now you just don't leave it. Tap running. Don't leave the tap running. Repeat after me. Don't leave the tap running. The next one is पहले हमने सीखा था पर्दा लगा दो. Draw the curtain. पर्दा हटा दो को क्या कहेंगे? Remove the curtain. सोचो जरा. देखते हैं. Draw the curtain back. It means हम हटाने और लगाने के लिए draw ही यूज करते हैं. और जब लगाना होता है तो we say draw the curtain. जब हटाना होता है we say draw the curtain back. And now कमरा समेटो. कमरा बिल्कुल फैला हुआ है. Oh, tidy up the room. बर्तन सिंक में डाल दो. बर्तन सिंक में डाल दो. Put the dishes in the sink. Put the dishes in the sink. Repeat after me. Put the dishes. बर्तन. बर्तन को क्या कहेंगे? Utensils भी कह सकते हैं. But mostly we say dishes. Put the dishes in the sink. And now the next one is वह बहुत बक-बक करती है. अब इसके लिए बहुत सारे सेंटेंस हैं. Mostly what we can use it. Just think about it. You have 5 seconds. देखते हैं. She is a chatterbox. Don't have to बक-बक करती हो को क्या बोलेंगे सोचने लगते हैं हम. याद कर लो. बक बक जो बहुत करे वो क्या है? चैटर बॉक्स. बहुत ज्यादा बातें करने वाला. कुछ भी बोलते रहता है. कुछ ना कुछ बोलना है उसको. वो कौन है? वो है चैटर बॉक्स. He is a chatterbox. She is a chatterbox. I don't like chatterbox. She is a chatterbox. वह अपने बच्चे पर जान छिड़कती है. अब कैसे कहेंगे? सोचो जरा. ट्रांसलेट करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी. इसका मतलब यही ना, बहुत लव करती है अपने बच्चे को. She loves her child very much, so much. लेकिन कैसे बोलेंगे? देखते हैं. She dotes on her child. जान छिड़कने में dotes आ गया. She dotes कहाँ? On her child. बच्चे पे जान छिड़कती है. She dotes on her child. अपने घर में यूज करना. जिसको आप बहुत प्यार करते हो आप सोचना I dote on this, I dote on this. सोच सकते हैं ऐसे तो रिमेम्बर रहेगा. मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ. मैं तुमसे परेशान हो गया. अब कैसे बोलेंगे? ट्रांसलेट कर. अब ऐसे बोलते ना I am tired of you. I am troubled of you. दोनों गलत है. काम तो चल जाता है. I'm exhausted of you. कमेंट बॉक्स में लिखो किसने सही ट्रांसलेट किया. I am sick of you. इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैं तुमसे परेशान हूँ, थक गया हूँ. I am sick of you. बस उसे बीमार बोल देते हैं वो. आप इसको sick समझ लो. I am sick of you. Very nice sentence.
मुझ पे रौब मत जमाओ, मुझ पे रौब मत झाड़ो। होता है ना कि बार मुझ पे बहुत रौब जमाता है, मेरा बड़ा भाई मुझे बहुत रौब जमाता है। कैसे कहेंगे इसको? डोंट एंग्री ऑन मी, डोंट, बहुत अच्छा वर्ड है, लेक्सिक। डोंट बी मैड एट मी, डोंट बी मैड एट मी, डोंट बी मैड एट मी, रिपीट आफ्टर मी, डोंट बी मैड एट मी। नेक्स्ट वन इज मुझसे दूर हो जाओ। ये कर सकते हो, थोड़ा ट्रांसलेशन में आ जाएगा, ट्राई करो। मुझसे दूर हो जाओ। लिखो कमेंट बॉक्स में 1 2 3 4 5। मुझसे दूर हो जाओ, देखते हैं। गेट अवे फ्रॉम मी, गेट अवे फ्रॉम मी, रिपीट आफ्टर मी, गेट अवे फ्रॉम मी। मुझसे दूर हो जाओ, कीप अवे नहीं कहेंगे, गेट अवे, है ना? गेट 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 सॉरी, गेट अवे फ्रॉम मी। तुम भरोसे के लायक नहीं हो। लोग बोलते हैं ना, ये भरोसे के लायक नहीं है बंदा, वो भरोसे के लायक नहीं है। अब इसको कैसे कहेंगे? सोचो, ट्रांसलेट करो भाई, ट्रांसलेट ही तो करते हैं, इसीलिए करें कॉमन फ्रेजेस रट लो। यू आर नॉट रिलायबल और यू आर अनरिलायबल, बट ज्यादातर हम रिलायबल यूज करते हैं। तो यू आर नॉट रिलायबल, ही इज नॉट रिलायबल, शी इज नॉट रिलायबल। उस पर भरोसा नहीं कर सकते, कुछ भी बोल दो बॉस को बोल देती है, कुछ भी बोल दो चुगली कराती है, तो वो उस पर भरोसा मत करना, वो भरोसे के लायक नहीं है। शी इज नॉट रिलायबल, यू आर नॉट रिलायबल। यूज योर ओन सेंटेंस। नजर मत लगाओ, नजर मत लगाओ, कहते हैं ना, ये बहुत अच्छा तुमने लिखा है, ओके, ये तुमने बहुत अच्छा बनाया है, नजर मत लगाओ। हाउ विल यू से दिस? सोचो सोचो सोचो। डोंट आई ऑन दैट, नजर मत लगाओ तो क्या बोलेंगे? डोंट गेज ऑन दैट, सोचो। डोंट चिंग्स इट, डोंट चिंग्स इट, रिपीट आफ्टर मी, डोंट चिंग्स इट। इसे नजर मत लगाओ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है। मे बी आज मेरा उतना रोल ना हो और मीटिंग में मुझे बुलाया जा रहा हो या किसी को बुलाया जा रहा है, तो उसे लग रहा है कि मुझे जरूरत नहीं है। हाउ विल से दिस? आई फील दैट, आई अज्यूम दैट, मुझे मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू गो इन द मीटिंग, काम तो चल जाएगा। पर इज इट राइट वे टू स्पीक? क्योंकि आपको तो क्या बनना है, फ्लुएंट स्पीकर बनना है, ठीक है। अभी शुरुआत में चलेगा, वो भी चलेगा, बट ट्राई टू लर्न द डायरेक्टली फ्रेजेस। मैं आपको हमेशा ये बोलूंगी, क्योंकि मैंने भी अपने इंग्लिश इम्प्रूवमेंट में पहले बहुत ट्रांसलेट करती थी और अर्थ का अनर्थ हो जाता था। बाद में मैंने भी ये चीजें की, मैंने भी बहुत सारे कॉमन फ्रेजेस सीखे, एंड इट हेल्प्स मी। apparently, कितना अच्छा वर्ड है। I assume, I feel, don't say this. Apparently, I don't have to go to the meeting. मुझे ऐसा लगता है, जब कोई चीज आपको बहुत फील हो जाए, आपको पता है, apparent है, बिल्कुल दिख रहा है, एहसास हो रहा है, वहां पे हम कहते हैं apparently, apparently, this is apparent, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। I don't have to go to the meeting. फिर ऐसा कभी मत करना, बनाइए इसका, छोटा सा सेंटेंस है, फिर ऐसा कभी मत करना। यस, मुझे लगता है कुछ लोग कर लेंगे ट्रांसलेट, देखते हैं। Don't ever do that again. ये you can translate it. Don't ever do that again. बट लर्न कर लेते हैं ना, क्या जरूरत उसको इंग्लिश में सोचो, तो कहता है इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में सोचो। हाउ विल यू थिंक इन इंग्लिश जब तक वो फ्रेजेस ही नहीं होंगे आपके दिमाग में? डोंट एवर डू दैट अगेन, रिपीट आफ्टर मी, डोंट एवर डू दैट अगेन, डोंट एवर डू दैट अगेन। फिर ऐसा कभी मत करना, डोंट एवर डू दैट अगेन। एंड नेक्स्ट वन इज, मैं तुम्हारी कंप्लेन से थक चुका हूँ। कई बार होता है ना, कुछ लोग होते हैं बस कंप्लेन करते रहते हैं, इसने परेशान किया, उसने परेशान किया। अब तुम्हारा बॉस बोल रहा है मैं तुम्हारी कंप्लेन से थक चुका हूँ, या तुम्हारा छोटा भाई बहन है या फैमिली में छोटे लोग हैं, वो आपसे बार बार कंप्लेन करते रहते हैं, ये हो रहा है, मेरे क्लास में बार बार कंप्लेन करते रहते हैं। हाउ विल यू से दैट? आई एम टायर्ड ऑफ योर कंप्लेन्स, आई एम फेड अप। हमेशा टायर्ड, एग्जॉस्टेड, यू डोंट हैव टू यूज दिस सेंटेंसेस, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट these words with a good one, like I'm fed up, I'm sick of you। अभी हमने सीखा था I'm fed up of, don't mad at me बोला था। मैड, मुझ पे गुस्सा मत करो, पागल मत हो मेरे ऊपर, जब क्योंकि मुझ पे गुस्सा मत करो, रोब मत दिखाओ। वहां पे ऐसा था, यहाँ पे देखो आई एम फेड अप, पूरा भर चुका हूँ, थक चुका हूँ। कैसे बोलेंगे? आई एम टायर्ड ऑफ, चल जाएगा भाई, सब चल जाएगा, लेकिन आप अगर इन सेंटेंसेस को याद कर लेंगे तो आपका बहुत फायदा हो जाएगा। आई एम फेड अप ऑफ योर कंप्लेन्स, आई एम फेड अप, आई एम फेड अप। आप ऐसे ना वर्ड्स को एक दूसरे के साथ से ज्वाइंट करना सीखो, क्योंकि जो
जब इंग्लिश में बात करते हैं तो आई एम नहीं बोलते, जैसे हम लोग आई एम, आई एम, नो, आम, आई एम, आम। आपको आई एम को एक साथ कॉन्ट्रैक्शन में बोलना होगा। आई एम फेड अप ऑफ योर कंप्लेन्स, आई एम फेड अप ऑफ योर कंप्लेन्स। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हम कई बार कहते हैं ना, कहीं मन नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा। हाउ विल यू से दिस? ट्रांसलेट करिए, बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। यू हैव 5 seconds। आई डोंट फील गुड, यही तो बोलते रहते बार बार, सीखते नहीं ना। आई एम फीलिंग ऑफ, लर्न कर लो, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। आई एम फीलिंग ऑफ। एक डायरी लो या चार्ट लो, उसमें सारे सेंटेंसेस लिख दो, उनको पढ़ते रहो सुबह शाम। You will memorize, you will learn, your English will improve. I am, I'm feeling off. I'm feeling off. मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उसको सिर्फ feeling off और double F, off, feeling off. I'm feeling off, try it. वो पता नहीं कहाँ से आ गया। अब कुछ बात हो रही थी और एकदम अचानक से कोई आ गया और आपको लग रहा था कि वो बंदा नहीं है, वो पता नहीं कहाँ से आ गया। या रोड पे एकदम से आप जा रहे हो और कोई बाइक आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आ गया, दिखा ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ से आ गया। हाउ विल यू से दिस? ट्रांसलेट करिए, देखिए कितना बड़ा ब्लंडर करेंगे आप। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही कम, वो पता नहीं। आई डोंट हैव नॉलेज फ्रॉम वेयर ही कम, फ्रॉम वेयर ही केम, नो, he came out of nowhere, he came out of nowhere, he came, repeat after me, he came out of nowhere, पता नहीं कहाँ से आ गया। अब वो यही बोलते हैं, he came out of nowhere, पता नहीं कहाँ से, nowhere। आप उसको फील भी करेंगे ना तो उसका मतलब यही होता है, बिकॉज उनका अपना वे है बोलने का। हम ट्रांसलेशन से सीखते हैं। हम हमारे पेरेंट्स इंग्लिश में जब हम पैदा हुए तो हम सुनते नहीं थे कि वो बात कर रहे हैं, उनके घर में लोग ऐसे ही बात करते हैं, तो दे हैव दिस, जैसे हम कहते हैं वो पता नहीं कहाँ से आ गया, उनको ये बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सब सबको जब कोई एक नई लैंग्वेज सीखता है तो उसका तरीका पैटर्न अलग होता है, लेकिन बिकॉज इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज एंड we need its correct pronunciation, correct sentences, so we have to learn it properly. He came out of nowhere, इसको बिल्कुल अभी याद कर लो, इसको दिमाग में बिठा लो, 20 बार पढ़ो इसको। So these are the 25 sentences। मुझे बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना था, मैं इसका पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 में अगले 25 सेंटेंसेस पे वीडियो बनाती हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है, आई फील करती हूँ कि ये सेंटेंसेस आपको बहुत फायदा करेंगे, आपको आपके इंग्लिश इंप्रूवमेंट में इट विल हेल्प यू। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।